Salutations, my dear brilliant minds. How are you all? Hope you all are doing well. This is really great. This is Harshi back again with another chapter, which is chapter number 10, Electric Current and its Effect of your course books. So let's begin with the chapter. Before starting, we'll discuss what all topics that we are going to learn in this chapter. The topics such as electric current diagrams, circuit diagrams, heating effect of the electric current, and next we are going to learn the magnetic effect of a electric current. So as we all do before starting the chapter, let's do the warm-up exercise. Look at the pictures given below. The bulb will not glow in any of the cases, right? So here are some cases mentioned, A, B, C, D, right? So bulb is not glowing. We need to find out why it is not glowing. The reasons are given. Draw a line to match the correct boxes with the figures given below. So we have the figures, but statements are missing here. So first we will see the statement. Statement is on next slide. So I'll tell you the option. You just draw the lines. Like the first one, the first option is the path is broken or incomplete. Path, like air, this electricity, it is a form of energy. It has to flow. Energy is something which cannot be created, we can change the form of the energy, right? So these four options are given, A, B, C, D, in which you find that path is broken. So path is broken in this one, in the C option. You can see the wire is broken, right? So let's see the next option. Next option is the source that produces an electric current is missing. So it is asking the source from where we are getting the electricity. So let's see the option, first option, in which there is no source of energy, right? So match second option with the option number A, right, children? Next is the rubber band blocks the flow of current as it is in an insulator. So we have studied in our previous chapter, in the heat chapter. We know that conductors and insulators, similarly conductors and insulators are there in electricity. The materials that allow the electricity to pass through them are known as conductors, whereas the materials that don't allow electricity to pass through them are known as insulators. So it is saying that rubber band blocks the flow of current as it is an insulator. So rubber is an insulator. So match it with D1. Here you'll find the rubber band. Rubber band is attached with the wire, so current would not flow in this circuit. So this is wrong or incomplete circuit. The last one is there is no wire for electric current to flow through. So where is no wire? In the B1. Battery is there, source of energy is there, bulb is there, but wire is not there, right? So I have given you the correct answers. You can match in your books, right? So let's begin the chapter. Electric circuit diagrams. So an electric circuit can be represented by drawing a simple diagram using standard symbols. So कुछ symbols defined है. हर बार जब हम इलेक्ट्रिक डायग्राम अगर बनाएंगे, सर्किट का, इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम अगर एग्जाम में बनाते हैं तो हर बार हमें स्विच बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्ब बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, सेल बनाने की ज़रूरत नहीं होगी. उसके कंपैरिजन में हम क्या बनाएंगे? कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं, उसको यूज़ करके हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. अब हम वो स्टैंडर्ड सिंबल्स भी करेंगे. अ ड्राइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट विद स्टैंडर्ड सिंबल, दिस इज कॉल्ड द circuit diagram. So in a circuit diagram, the various components of the circuits are represented by standard symbols, some of which are given in table, right? So circuit diagram हम draw करते हैं. ये list है जिसमें हम use करते हैं, इनकी जगह हम symbols use करते हैं. Let's say सबसे पहले बात होती है cell की. So cell अगर हमें draw करना पड़ता है, so we have to draw the cell like this,
but if we are drawing the circuit diagram, so instead of you drawing cell every time, हम सिंपल से एक लंबी लाइन और एक छोटी लाइन ड्रॉ करेंगे, और जो लंबी लाइन होती है वो उसको पॉजिटिव टर्मिनल शो करते हैं, और जो छोटी लाइन होती है उसको नेगेटिव टर्मिनल रिप्रेजेंट किया जाता है. सो द शॉर्टर लाइन डिनोट्स द नेगेटिव टर्मिनल and the longer line denotes the positive terminal of the cell. Now next is battery. So cell और battery में क्या difference होता है? Cell is single cell, और जब हम एक से ज़्यादा cell combine करते हैं, so this is known as battery. तो same symbols हम use करेंगे. Let's say यहाँ पर 1 2 3 battery 3 cells है जिसको हमने बैटरी की तरह represent किया हुआ है. तो इसमें भी हम 3 टर्मिनल्स ड्रॉ करेंगे, यानी 3 लाइन्स लॉन्ग लाइन्स ड्रॉ करेंगे और 3 ही शॉर्ट लाइन्स ड्रॉ करेंगे, राइट. सो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द बैटरी. नेक्स्ट इज ऑन ऑफ की होती है या स्विच होती है, कुछ भी आप मान लो. तो ये ओपन है जिसमें हम एक सिंपल लॉन्ग लाइन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल जिसमें एक ऐसे डॉट रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर ये ओपन है यानी की अगर ओपन है तो हम इसको ऐसे ओपन दिखा देंगे और एक लाइन और ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस, राइट. और अगर क्लोज्ड है यानी कि सर्किट अगर क्लोज्ड है तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट. सो दीज आर द सिंबल्स and we can use these symbols in drawing the circuit diagrams. अब अगर बल्ब ऑन है तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, देन वी कैन इस तरीके से कॉइल दिखा देंगे एंड एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. और अगर बल्ब वर्किंग है और बल्ब इज ग्लोइंग तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और इफ इट इज इन ऑफ कंडीशन तो हम ऐसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे. वायर्स का सिंबल क्या है? सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या कोई भी मतलब लाइक अगर हमें वर्टिकल दिखाना है तो लाइन रिप्रेजेंट अ वायर, राइट. सो ये क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ अ इलेक्ट्रिक सर्किट. और सर्किट को जब हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं वी आर यूजिंग दीज सिंबल्स एंड वी आर ड्रॉइंग द इलेक्ट्रिक सर्किट. अब using these symbols the circuit diagram for the circuit given in above figure can be drawn as shown. तो क्या है? ये सेल है, सेल यानी कि एक सिंगल सेल, और ये लॉन्ग लाइन है यानी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है. अब पॉजिटिव टर्मिनल को हमने किससे किया हुआ है? बल्ब से अटैच किया हुआ है, ठीक है. और इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? It flows always from positive terminal to the negative terminal. Positive terminal से negative terminal की तरफ करंट फ्लो करेगा, इसलिए एरो से इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, राइट. यहाँ पर ऑन ऑफ की है, ऑन ऑफ की हमने ऐसे रिप्रेजेंट की हुई है, मीन्स सर्किट जो है वो क्लोज्ड है यानी कि की ऑन है, और यहाँ से हमने इसको इधर कनेक्ट किया हुआ है. बल्ब इज ग्लोइंग, राइट. तो इसका मतलब ये कंप्लीट सर्किट डायग्राम है, बल्ब ग्लो कर रहा है. सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल ड्रॉइंग सर्किट डायग्राम्स आर there should be a source that is one or more electric cells. तो एक सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना ज़रूरी है, या तो वो सेल होगा और बैटरी होगी. तो या इस केस में क्या है? इस केस में सेल है, राइट. और नेक्स्ट क्या है? द वायर शुड नॉट हैव एनी डिसकंटिन्यूटी और गैप्स. तो ये वायर्स हैं, वायर्स को सिंपल एक लाइन से ड्रॉ करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये वायर है जिसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए, डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट, द ओनली कंपोनेंट दैट कैन हैव डिसकंटिन्यूटी इज द स्विच, राइट. स्विच में हो सकती है, बिकॉज स्विच को कभी हमें ऑन कंडीशन में दिखाना होता है, कभी हमें ऑफ कंडीशन में दिखाना होता है. तो ऑन और ऑफ में डिसकंटिन्यूटी होती है. सो व्हेन इट इज ओपन, सो देयर इज डिसकंटिन्यूटी एंड करंट डज नॉट फ्लो इन
सर्किट। और अगर ये ओपन होगा तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, राइट, कि ये ओपन है तो मतलब सर्किट क्या है, सर्किट ओपन है तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है। नाउ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हमें सर्किट कर लिया है, सर्किट कैसे ड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट, बैटरी और सेल में क्या डिफरेंस होता है, और सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमें किन चीज़ों पर ध्यान रखना है। पहला, एक सोर्स ऑफ करंट ज़रूर होना चाहिए, बैटरी और सेल की ज़रूर होनी चाहिए, कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए, वायर्स में कोई गैप नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि सर्किट क्लोज है बट फिर भी बल्ब नहीं ग्लो कर रहा, तो क्या रीज़न हो सकता है, मे बी बल्ब इज फ्यूज्ड, ये भी कंडीशन हो सकता है। मे बी सेल इज ड्रेन्ड, सेल एक्सपायर्ड है, वो ड्रेन है, वो क्या कर रहा है, बल्ब को ग्लो नहीं कर पा रहा, तो हम इन चीज़ों को भी चेक कर सकते हैं। अगर ये चेक करने के बाद भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है तो विच मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम इन द सर्किट। अब आते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट, कौन से, हीटिंग इफेक्ट, राइट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ट्राई टचिंग द टॉर्च बल्ब दिस दैट इज lit and another that is not. Be careful when you touch the lit bulb. Do you feel it is hot to touch? Why do you think it is so? जो दो बल्ब हैं, एक बल्ब ऑन है, एक बल्ब ऑफ है, राइट। तो जब आप जो बल्ब ऑन है, अगर वो थोड़ी देर से ऑन है, लेट्स से कुछ 30-40 सेकेंड से और 60 सेकेंड, 1-2 मिनट हो गए हैं बल्ब जलते जलते, तो क्या होगा, इफ़ यू टच दैट बल्ब तो आपको वो गर्म लगेगा, वार्म लगेगा, राइट। और जो बल्ब ऑफ है वो गर्म नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है, राइट। इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन करंट फ्लोज इट ऑल्सो जेनरेट हीट, राइट, इसी को बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो इन अ बल्ब इलेक्ट्रिक करंट passes through a very thin wire made of special materials such as tungsten। तो ये जो पहले बल्ब आते थे इनिशियली, इनमें एक फिलामेंट होता है, वो फिलामेंट जलता है और वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है, वो टंगस्टन का मटेरियल का बना हुआ होता है। क्यों टंगस्टन का मटेरियल का बनता है, किसी और मटेरियल का क्यों नहीं बनता, क्योंकि टंगस्टन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, बहुत देर तक जलता है लेकिन फिर भी ये मेल्ट नहीं होता, इसलिए टंगस्टन का बनाया जाता है। तो क्या करता है, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, बल्ब ग्लो होता है, तो ग्लो होने के साथ साथ हीट भी रिलीज होती है। अब बल्ब का प्राइमरी वर्क क्या है, बल्ब का प्राइमरी वर्क है लाइट देना, राइट। उसका वर्क हीट देने के लिए तो यूज नहीं करते। तो क्या होता है कि बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है, क्यों, क्योंकि लाइट के साथ साथ हीट भी मिलती है, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती थी, ये पुराने जो बल्ब होते थे। अब इनकी जगह क्या आ गए हैं, CFLs और LED लाइट्स आ गई हैं, राइट। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है। सो टंगस्टन दिस इज कॉल्ड फिलामेंट। तो एक इसमें फिलामेंट इस तरीके से ऐसे 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 कॉइल्ड शेप में वो लगा होता था, इसको बोलते थे फिलामेंट, और ये टंगस्टन का बना हुआ होता था और बल्ब इसी की वजह से ग्लो करता था। सो व्हेन द बल्ब इज स्विच्ड ऑन द फिलामेंट गेट्स हीटेड, ये फिलामेंट हीट होता था, एंड दिस इज ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या होता था, टंगस्टन जब हमने स्विच ऑन किया लाइट के लिए तो क्या होगा, फिलामेंट में हीट प्रोड्यूस होगी और फिर वो ग्लो करेगा, लाइट मिलेगी। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फाइंड्स एप्लीकेशन इन वेरियस अप्लायंसेस इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक टोस्टर्स, इलेक्ट्रिक आयरन, हॉट प्लेट्स, इलेक्ट्रिक हेयर ड्रायर्स एंड इलेक्ट्रिक ओवन। तो हम इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफेक्ट को यूज करते हैं, कैसे, जो आयरन हम करते हैं, प्रेस करते हैं कपड़े, तो इलेक्ट्रिक आयरन जो होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, ठीक है। अवन, माइक्रोवेव, इसमें भी यही होता है। और क्या होता है, हेयर ड्रायर्स, तो इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी और उसको हम यूज करते हैं। These
appliances incorporate tightly wound coil known as element. इन सब appliances में क्या होता है, coil होती है, इसमें सब में element होता है. element पे क्या होता है, जो वायर होती है वो coiled होती है, वायर लिपटी हुई होती है, right? So which heat up when electric current flows through them. तो क्या होता है, वो एलिमेंट हीट करता है. जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे सो एलिमेंट हीट अप होना स्टार्ट हो जाता है और क्या होता है, गर्म होता है और हीट रिलीज करता है. सो इन मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस द अनकवर्ड एलिमेंट कैन बी आइडेंटिफाइड इट्स डल रेड ग्लो व्हेन अप्लायंस इज इन ऑपरेशन. जो जैसे पहले हीटर्स आते थे, रूम हीटर्स आते थे, तो उसमें वो कॉइल्ड एलिमेंट दिखता था. जो पुराने तरीके के हीटर अगर किसी के घर में होंगे सो यू कैन चेक दैट. जब जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो एक रॉड होती थी, रॉड के ऊपर वायर ऐसे कॉइल्ड होती थी, तो धीरे 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 करके क्या होगा, वो एलिमेंट जो होता था वो हीट अप करना स्टार्ट करता था और एक लाइट भी उसमें से दिखती थी, राइट? सो दिस इज हाउ इट appliances are working. When a bulb fuse, it will not glow because a broken filament breaks the circuit and current cannot no longer flow through it. So जब बल्ब फ्यूज होता है तो क्या होता है, बल्ब फ्यूज होता है तो बीच का जो फिलामेंट होता है जो टंगस्टन से बना हुआ होता है वो क्या हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है. ब्रेक होने से क्या होता है, सर्किट ओपन हो जाता है. सर्किट ओपन होने का मतलब सारा सर्किट क्लोज नहीं है. क्लोज एंड ओपन ये दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक सर्किट में. ओपन का मतलब कहीं ना कहीं गैप है सर्किट में, सर्किट कंप्लीट नहीं है और करंट फ्लो नहीं हो रहा है. और अगर सर्किट क्लोज की बात करते हैं सो क्लोज सर्किट विच मीन्स करंट इज flowing in the circuit. So open and closed terms are very important when you are studying about the electricity or electric circuit, right? तो अब एक एक्टिविटी है टू शो द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. कैसे दिखा सकते हैं, हमें एक सेल लेना है, कितना 1.5 वोल्ट का सेल लेना है, 2 पीसेस ऑफ वायर लेने हैं, स्मॉल टॉर्च बल्ब लेना है, एक छोटा बल्ब लेंगे, एंड इंसुलेशन टेप और अडेसिव टेप चिपकाने के लिए, वायर्स को फिक्स करने के लिए. तो सबसे पहले क्या करना है, हमें स्ट्रिप द इंसुलेशन एट बोथ एंड्स ऑफ 2 वायर्स सो दैट अबाउट 1 सेंटीमीटर ऑफ द मेटल पोर्शन इज एक्सपोज्ड. तो जो आपके पास वायर्स हैं उसमें उनके ऊपर इंसुलेटर्स होते हैं, वायर्स के ऊपर वायर्स होती है मेटल की, मोस्टली कॉपर की वायर्स होती हैं, और उसके ऊपर क्या होता है, रबड़ की कवरिंग होती है या प्लास्टिक कवरिंग होती है. तो वो क्या होते हैं, रबड़ और प्लास्टिक इंसुलेटर्स होते हैं. तो आपको इंसुलेटर को थोड़ा सा हटाना है ताकि वायर दिखे. कनेक्ट द नेगेटिव एंड ऑफ द सेल टू द थ्रेडेड पोर्शन ऑफ द बल्ब वन ऑफ द वायर. अब एक वायर को आपने क्या करना है, बल्ब के साथ अटैच करना है और उसी के एक साइड को आपने सेल के साथ अटैच करना है. जैसे नेगेटिव एंड से अटैच किया, सिक्योर बोथ एंड्स विद द इंसुलेशन और एडेसिव टेप, ताकि वो बार बार हिले ना वायर, तो उसके ऊपर आपने टेपिंग कर देनी है, राइट? कनेक्ट द पॉजिटिव एंड ऑफ द सेल ऑफ द बॉटम पोर्शन ऑफ द बल्ब. अब आपने एक वायर को पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया सेल के, और उस वायर के एक सिरे को आपने बल्ब के कहाँ करा, सेकेंड बॉटम पोर्शन ऑफ द बल्ब. सो बल्ब में भी 2 होते हैं, जब हमने लास्ट क्लास में बल्ब के बारे में पढ़ा था, राइट? सो बॉटम पोर्शन को बल्ब के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ आपने अटैच करना है और उसको भी टेप लगा के फिक्स कर देना है. यू विल फाइंड दैट बल्ब ग्लोज. If it does not glow, then check if some connections are tight or need to be tightened. Adjust the connections till the bulb glows. अगर नहीं हो रहे हैं, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, तो आप वायर को चेक करो, मे बी वायर कहीं से लूज हो तो उसको टाइट कर दो. टच द बल्ब टू सी हाउ हॉट इट इज व्हेन द कनेक्शंस आर कंप्लीट. और जब बल्ब ग्लो करना स्टार्ट करे तो कुछ सेकंड्स के बाद अगर आप उसको टच करोगे, छूओगे, तो आपको पता चलेगा कि बल्ब हॉट है, गर्म है, वार्म है. लीव दिस अरेंजमेंट
with the bulb glowing for some time and then touch the bulb. कुछ टाइम बाद और गर्म हो जाएगा. So observation, bulb is little warmer now than at the beginning. Starting में क्या था, ठंडा था, और जब टाइम निकलता गया राइट उसके बाद क्या हुआ, बल्ब ज़्यादा वार्म होता गया. Conclusion, this is because the passage of electric current heats it up. Light इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था और जिसकी वजह से हीट जनरेट हुई. सो फॉलो द प्रिकॉशंस गिवन बिलो व्हाइल डूइंग दिस एक्टिविटी. क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? पहला, टच ओनली द इंसुलेटेड पार्ट ऑफ द वायर कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ द सेल. ऐसा नहीं कि आपने वायर लगाया और वहीं अपना हाथ लगा दिया तो आपको भी इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, तो आपको इंसुलेटर से पकड़ना है. Do not perform the activity near inflammable materials such as kerosene, petrol or gas cylinder. Otherwise, they can catch fire. Next is, do not use a cell or a higher voltage than specified. 1.5 volt से ऊपर का सेल आपने नहीं लेना वरना शॉक ज़्यादा तेज़ हो जाएगा. Next is, do not use the plug points of your house or school. Right? ऐसा नहीं है कि उसको वायर्स को प्लग में लगा दिया राइट जो आपको इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा. तो ये प्रिकॉशंस आपने लेने हैं. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज. इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होते हैं? व्हाट विल हैपन इफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू एन अप्लायंस. बहुत तेजी से, बहुत बार हमारे घर में क्या होता है, फ्लैक्चुएशन होती है, लाइट में फ्लैक्चुएशन होती है, और अगर फ्यूज नहीं लगे हुए मतलब जनरली फ्यूज होते हैं सो बहुत बार हमने देखा है कि फ्यूज़ उड़ जाता है. फ्यूज़ उड़ना मतलब बहुत ज़्यादा लाइट आई और बहुत ज़्यादा लाइट होने की वजह से फ्यूज़ क्या होते थे, ब्रेक डाउन हो जाते थे, फ्यूज़ उड़ जाते थे. नॉर्मल लैंग्वेज में उसको फ्यूज़ उड़ना बोलते हैं. और बहुत सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस खराब हो जाया करते थे. इट कॉजेज द वायर टू गेट ओवर हीटेड एंड द अप्लायंस गेट डैमेज्ड. This situation arises as a result of some fault in the circuit and can be extremely dangerous as it can lead to fire, right? So बहुत ज़्यादा dangerous होता है, एकदम से fluctuation होती है, बहुत तेज़ लाइट आती है बहुत बार और बहुत सारी चीज़ें हमारी ख़राब हो जाती हैं. और इनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? इनको प्रिवेंट कर सकते हैं फ्यूज़ लगाकर. To safeguard electric appliances from the potential damage caused by an excessive flow of current, a safety device known as fuse is employed. तो ये जो बहुत सारा करंट एक बार आता है, एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फ्यूज़ यूज़ करते हैं. फ्यूज़ की हेल्प से हम सर्किट को ब्रेक कर देते हैं. फ्यूज़ के अंदर एक वायर होता है, अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ वो वायर ब्रेक डाउन हो जाता है और क्या होता है, ब्रेक डाउन होने से सर्किट ओपन हो जाता है और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट गेट्स स्टॉप्ड. राइट, सो अ फ्यूज सर्व्स एज प्रोटेक्टिव डिवाइस विद इन द इलेक्ट्रिक सर्किट. और अब पहले तो मेन आपका स्विच होता था जहाँ मीटर लगा होता है, इलेक्ट्रिक मीटर, वहाँ पर फ्यूज़ होता था, एक बड़े बड़े फ्यूज़ लगे होते थे. तो बार बार वो क्या होता था, जैसे इलेक्ट्रिक करंट आया आपको फिर बार बार फ्यूज़ रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती थी. अब उसकी जगह जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, अब उसकी जगह MCBs ने ले ली है. MCBs क्या होती है, ट्रिप हो जाती है. जैसे ही एक्सेसिव करंट फ्लो होगा MCB क्या होगी, ट्रिप हो जाएगी. और छोटे होते हैं ये कंपैरेटिवली फ्यूज़ के, MCBs ट्रिप हो जाती है. आपको सिंपल वो MCB को ऊपर उठाना होता है, दैट्स इट. राइट, सो बार बार फ्यूज़ को रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है. सो फ्यूज़ आर एक्टिंग एज द प्रोटेक्टिव डिवाइसेस. और अब जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आ रहे हैं, रेफ्रिजरेटर, ACs, आपके नॉर्मल TV, इन सब के अंदर फ्यूज़ इनबिल्ट होते हैं. राइट, अ फिगर अलोंगसाइड, ये फिगर है इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की, छोटे छोटे फ्यूज़ होते हैं. अ फिगर अलोंगसाइड इलिस्ट्रेट सम इलेक्ट्रिक फ्यूजेस सच एज कार्ट्रिज फ्यूज़. इनको क्या बोलते हैं, कार्ट्रिज फ्यूज़ बोलते हैं. एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एक्ट एज अ प्रिवेंटिव मेजरिंग बाय इंटरप्टिंग द फ्लो ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट.
into any appliance or device by cutting off the supply of electric current. It effectively prevents further damage. तो क्या होता है, जो इनके अंदर वायर होता है वो लो मेल्टिंग पॉइंट के लगाए जाते हैं, वो हाई मेल्टिंग पॉइंट के नहीं होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट के आते हैं. जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो तेज होता है, हेवी करंट फ्लो होता है, वो क्या होता है, वायर मेल्ट हो जाता है, इट गेट्स ब्रोकन डाउन, और क्या होता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई क्या होता है, रुक जाता है और सर्किट ओपन हो जाता है. राइट. Science fact: if you look carefully at the cartridge's fuse, you will find a number stamped on it. इस पर stamping होती है. Right? ये जो metal वाला part है, इस पर stamping होती है. This number signifies the amount of current that can flow through the fuse before it melts. तो इस पर mention होता है कि कितने करंट का, एम्पियर्स में मेंशन होता है, इन एम्पियर्स की कितने एम्पियर तक के लिए ये वाला फ्यूज़ जो है वो सूटेबल है. जितना एम्पियर उस पर लिखा है, उस पॉइंट के ऊपर अगर करंट फ्लो होगा, ये फ्यूज़ क्या होगा, वायर जो इसके अंदर होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो सर्किट को ओपन कर देगा, और जैसे ही सर्किट ओपन होगा करंट फ्लो होना रुक जाएगा. राइट. और प्रोटेक्शन हो जाती है अप्लायंसेस की. सो अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज कैसे वर्क करता है. प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. द इलेक्ट्रिक फ्यूज ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट. राइट. हीटिंग इफेक्ट. हीटिंग इफेक्ट कैसे, अगर हायर एम्पियर का करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, जो एक मेटल का जिसका वायर लगा हुआ है वो क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट आते ही वो ब्रेक हो जाएगा उसके हीट की वजह से, और ब्रेक होने के बाद सर्किट ओपन हो जाएगा. राइट. सो द एक्सटेंट ऑफ हीटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर. सो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब जितना ज़्यादा हाई लेवल का करंट होगा उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और जितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी फिर क्या होगा, जो वायर होगा जो फ्यूज़ में लगा हुआ है, अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट आ गया है, मतलब उतना करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा, फिर वो वायर ब्रेक डाउन हो जाएगा. कॉन्सिक्वेंटली एज द करंट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ हीटिंग ऑल्सो इंक्रीजेज. राइट. सो अगर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, तो क्या होगा, हीट भी बढ़ेगी. An electric fuse typically comprises a thin wire housed within a glass or ceramic cartridge. तो ये इस तरीके की cartridge होती है, इसके अंदर क्या होता है, एक thin wire होता है. Right? So the wire is crafted from a material with a low melting point. Its design allows only a specific amount of current to pass through it. तो जो wire अंदर लगा होता है cartridge में, जो कि सिरेमिक की कार्ट्रिज होती है, इसके अंदर एक थिन वायर प्लेस्ड होता है. वो थिन वायर क्या करता है, उसका एक अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है. वो मेल्टिंग पॉइंट आते ही जब क्या होता है, फ्लैक्चुएशन होता है, हाई करंट फ्लो होते हैं, तो क्या होता है, वो वायर टूट जाता है. If the current surpasses the predefined limit, the wire heats up and eventually melt. This event is commonly referred to as the fuse blowing. Fuse उड़ जाना, blowing. Right. So the melting of the wire results in the breaking of the circuit, effectively interrupting the flow of current in the circuit. और अब क्या हो गया, सर्किट ओपन हो गया, सर्किट खुल गया है, क्योंकि सारी वायर्स इंटैक्ट नहीं है, सर्किट ओपन है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो रुक जाएगा. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. राइट. सो अभी हमने पढ़ा हीटिंग इफेक्ट. इलेक्ट्रिसिटी का जब फ्लो होता है तो उसके साथ कुछ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, हीट में भी कन्वर्ट होती रहती है. नेक्स्ट इफेक्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट. मैग्नेट की तरह भी जो वायर्स होते हैं, जब करंट फ्लो होता है उसमें, सो दे वर्क एज अ मैग्नेट. वो उनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं. कैन यू रिकॉल व्हाट यू हैव स्टडीड अबाउट मैग्नेट इन क्लास 6? Do you know that magnets can attract certain substances such as iron, nickel, cobalt? Right? Magnet किस किस को attract करता है अपनी तरफ? Iron, nickel, cobalt.
से की चीज़ों से बनी हुई चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. यू हैव स्टडीड अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म सेपरेटली. हाउएवर, डिड यू नो दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर क्लोजली रिलेटेड? अब वो क्या रिलेशन है वो अब हम पढ़ेंगे इस क्लास में, राइट? तो ये एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी से हमें क्लियर होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो एम क्या है? टू सी द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ वायर, राइट? तो इसमें क्या क्या लेना है हमें? 1.5 वोल्ट का सेल लेना है, 2 पीसेस ऑफ इंसुलेटेड वायर, अ स्मॉल मैग्नेटिक कंपस. कंपस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मैग्नेट, इसमें नीडल्स क्या होती हैं? नीडल मैग्नेटिक जो फील्ड होता है क्या करने लगती है? नीडल हिलने लगती है, राइट? सो एंड इंसुलेशन अडेसिव टेप, ये सब चीज़ें हमें चाहिए. अब हमें क्या करना है? स्ट्रिप द इंसुलेशन फ्रॉम द टू एंड्स ऑफ द बोथ द वायर्स. दोनों वायर्स को थोड़ा थोड़ा ऊपर से इंसुलेटर जो है वो हटा देना है, यानी वायर को थोड़ा सा इंसुलेटर हटा देना है, यानी वायर को छील लेना है. नेक्स्ट इज कनेक्ट वन एंड ऑफ द वायर to the negative terminal of the cell, secure the connection with the insulation or adhesive tape. एक वायर को हमने कहाँ लगाना है? नेगेटिव एंड पे लगा देना है. कनेक्ट वन एंड ऑफ द वायर टू द पॉजिटिव टर्मिनल, और एक वायर को हमने पॉजिटिव टर्मिनल पे लगा देना है. और सिक्योर द कनेक्शन विद द इंसुलेशन टेप, और दोनों की टेपिंग कर देंगे ताकि बार बार कनेक्शन लूज ना हो. प्लेस द मैग्नेटिक कंपस नियर द वायर. वायर के पास आपने क्या कर दिया? कंपस रख दिया, मैग्नेटिक कंपस. कीप एन आई ऑन द नीडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपस एंड टच फ्री एंड्स ऑफ द वायर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द सेल. अब आपने एक वायर को तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, और एक वायर को आपने क्या किया है? सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है. आपने सिंपल इसमें यही दो चीज़ें करनी है. सेल और वायर लेने हैं, दो वायर हैं, एक वायर को छील कर आपने पॉजिटिव एंड्स के साथ फिक्स कर देना और उसके ऊपर टेपिंग कर देनी है, और दूसरे वायर को सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगाकर उसको टेपिंग कर देनी है, राइट? अब आपकी दो वायर्स के जो एंड है वो फ्री हैं. आपने क्या करना है? वो दोनों फ्री वायर्स के एंड को टच करना है अपने हाथ से. ऐसा नहीं कि बांध देंगे, हाथ से, मतलब हमने इंसुलेटर से पकड़ना है, जहाँ पर प्लास्टिक की कवरिंग है वायर के ऊपर, वहाँ से पकड़ेंगे, और आगे से लेकिन वायर्स छिले हुए होने चाहिए. उन वायर्स को जैसे ही हम टच कराएंगे, और पास में हमारे क्या पड़ा है? मैग्नेट पड़ा हुआ है, कंपस. तो अब हमने क्या करना है? देखेंगे तो हम उसकी नीडल क्या कर रही है? हिल रही है, डिस्प्लेस हो रही है, राइट? सो ऑब्जर्वेशन, व्हेन द वायर्स टच द नीडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपस गेट deflected or it moves. Deflection का मतलब होता है movement. So conclusion, this is because when the current passes through the wire, it behaves like a magnet and therefore deflects the magnetic needle of the compass. तो क्या होगा? जैसे ही वायर टच होंगे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा. इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा? वायर्स कैसे बिहेव करेंगी? मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगी, और मैग्नेट की तरह बिहेव करने की वजह से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कंपस की जो नीडल है वो मूव करेगी, राइट? सो दिस शोज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और जब वो आप हटा दोगे तो कंपस का मूवमेंट, नीडल का मूवमेंट बंद हो जाएगा, राइट? सो जब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तब तक वायर्स मैग्नेट की तरह बिहेव करती हैं. वी हैव सीन इन द अबव एक्टिविटी दैट करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट. एज अ रिजल्ट इट कैन डिफ्लेक्ट अ मैग्नेटिक नीडल, और इसी वजह से डिफ्लेक्शन होता है. रैप अ वायर अराउंड अ सॉफ्ट आयरन पीस. आपने ये एक आयरन पीस लिया है, इसकी चारों तरफ वायर को रैप कर दो, राइट? इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द वायर. द आयरन पीस बिहेव्स लाइक अ magnet, or magnet make using such arrangement, this is called
इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो अब आपने क्या करा, एक आयरन का पीस लिया, आयरन के पीस के ऊपर आपने वायर को कॉइल कर दिया, उसको अच्छे से रैप कर दिया, और जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगा सो दिस विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट है, सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। A solenoid is a device that can be used as a electromagnet. It is made up with the long wire that has been wound many times, usually around a hollow metallic core into a tightly packed coil. It has the shape of a long cylinder. तो ये long cylindrical shape होती है, ये आयरन का पीस होता है, अंदर से हॉलो होता है और इसके ऊपर से वायर को कॉइल किया गया है एंड वी कॉल इट सोलेनॉइड, राइट। एक्टिविटी, वन मोर एक्टिविटी इज हेयर, टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या करेंगे हम, 1.5 वोल्ट का सेल लेंगे, एक आयरन नेल लेंगे, सेफ्टी पिन लेंगे, पीस ऑफ वायर लेंगे, राइट। अब क्या करना है, टेक अ पीस ऑफ वायर एंड स्ट्रिप द इंसुलेशन फ्रॉम द टू एंड्स। ये दो हमने वायर ली हैं, एक को नेगेटिव टर्मिनल से, पहले तो वायर को हम सेम आगे से छील लेंगे, थोड़ा सा इंसुलेटर उसका रिमूव कर देंगे, और एक वायर को हम पॉजिटिव एंड से अटैच कर देंगे और उसको टेपिंग कर देंगे, और दूसरे वायर को हम नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर देंगे और टेपिंग कर देंगे, राइट। अब क्या करेंगे, इसको वायर को हम किस पे करेंगे, इस आयरन नेल के ऊपर रैप कर देंगे, राइट। सो कनेक्ट द टू एंड्स ऑफ द वायर ऑफ द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो अब हमने क्या करना है, जो हमने एक पीस वायर का लिया है उसके दोनों एंड्स को हम क्या करेंगे, इंसुलेटर को रिमूव कर देंगे, एक एंड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया और उसको टेपिंग कर दिया, फिर वो वायर हमने ऐसे आयरन नेल के ऊपर क्या करा, कॉइल कर दिया इसके ऊपर, और फाइनली जो इसका एक एंड है उसको हमने सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जैसे ही हम अटैच करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज हो गया, तो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो आयरन नेल कैसे बन जाएगी, इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, राइट। और अगर आप एक सेफ्टी पिन इसके पास लेकर जाओगे तो आयरन नेल विल अट्रैक्ट द सेफ्टी पिन. So this shows the magnetic effect of electric current. So passing an electric current in a coil wrapped around an iron piece makes the iron piece magnetic. इसके अंदर magnetic properties आ जाएंगी. The strength of the electromagnet depends on two factors. Strength की बात हो रही है, मतलब कितना ज़्यादा magnetic effect होगा वो दो factors पे depend करता है. पहला, the number of turns of the wire around the core and the amount of current flowing through it. दो चीज़ें कि कितने ज़्यादा बार टर्न किया हुआ है वायर, दूसरा कि कितना ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का जो करंट है वो फ्लो कर रहा है. दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. The more the number of turns, the more would be the magnetic effect. जितने ज़्यादा वायर के टर्न्स होंगे उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट होगा. For instance, when an iron nail is enveloped by a coil with a greater number of turns, it attracts a larger quantity of safety pins. So जितना ज़्यादा टर्न होंगे, टर्न ज़्यादा होने की वजह से उतने ही ज़्यादा सेफ्टी पिन को अट्रैक्ट करेगा. So this shows the strength of a magnet. However, if the current passing through the coil is switched off, the iron piece will lose its magnetic effect. In other words, it will stop to function as magnet and consequently will no longer attract the safety pin. और ये magnetic property कब तक रहेगी? जब तक electric current flow कर रहा है. When the electric current will stop flowing, तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर जाएगी नेल, राइट. सो जब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता रहेगा तब तक मैग्नेटिक इफेक्ट रहेगा.
One more activity to study the behavior of an electromagnet when the current is switched off. अब आपने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेट लिया, कुछ आयरन फिलिंग्स ले ली, यानी कि आयरन का इस तरीके से पाउडर टाइप होता है, आयरन फिलिंग्स ले ली, कार्डबोर्ड ले लिया, एक पेंसिल सेल ले लिया. अब आपने क्या करा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है. क्या करेंगे, इसको एक इस तरीके से हमने वो लिया, कोर लिया जिसके ऊपर वायर लिपटा हुआ था, उसके हमने एंड्स को क्या किया, सेल के साथ अटैच कर दिया. एक एंड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, एक एंड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ. तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा. इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो दिस विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट. मैग्नेट होगा. इसको चेक करने के लिए हमने क्या करा, आयरन फिलिंग पास लेके गए. आयरन फिलिंग पास गई तो क्या होगा, वो अट्रैक्ट हो गई, क्योंकि मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करता है, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट को. तो आयरन जो है वो अट्रैक्ट हुआ, आयरन फिलिंग अट्रैक्ट हो गई. अगर आपने ये सेल, ये टर्मिनल को अलग कर दिया, कोई भी एक टर्मिनल यानी सर्किट ओपन हो गया, आपने ये वायर्स हटा दी, तो आप देखोगे कि जो आयरन फिलिंग है वो नीचे गिर जाएंगी. राइट, सो दिस शोज दैट इट इज नॉट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट नाउ. क्यों, क्योंकि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी खत्म हो गया ना, बैटरी हमने सेल हमने रिमूव कर दिया है. राइट, तो आयरन फिलिंग गिर जाएगी. सो जब मैग्नेटिक इफेक्ट तब तक काम करता है जब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है. यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट हम पढ़ रहे हैं, बट उनका कहाँ कहाँ यूज होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेट फाइंड डाइवर्स एप्लीकेशन अक्रॉस वेरियस डिवाइसेस इन एवरीडे. You can identify some common devices where electromagnet are utilized. कौन से हैं, in cranes to lift cars and scrapyard and for separation of iron from waste in garbage. So बहुत बड़े बड़े जहाँ पर कूड़े का ढेर लग जाता है, उसमें से आयरन, निकल और कोबाल्ट को फिल्टर करने के लिए, बिकॉज उनको निकालना इतना ईजी नहीं है, तो क्या होते हैं, बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं आयरन, निकल एंड कोबाल्ट आइटम्स को. राइट, तो ये गार्बेज से सेपरेट हो जाते हैं. दूसरा, जो क्रेन्स होती हैं, क्रेन्स क्या करती हैं, क्रेन्स में मैग्नेट होते हैं. टोइंग वैन्स होती हैं, तो वो क्या करती हैं, कार्स को या और व्हीकल्स को मैग्नेट जो है वो, क्योंकि आयरन की बनी होती है व्हीकल्स, उनको क्या करती है, अट्रैक्ट करने के लिए क्या होती है, क्रेन्स में बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे होते हैं. स्क्रैप यार्ड्स में वेस्ट को सेपरेट करने के लिए. दे आर ऑल्सो यूज्ड इन लाउड स्पीकर्स, टेलीफोन्स एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स पावरिंग डिवाइसेस लाइक फैन, वॉशिंग मशीन एंड इलेक्ट्रिक बेल्स. इन सब में इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है. अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक बेल के बारे में. इलेक्ट्रिक बेल कैसे वर्क करती है, फंक्शनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल. सो व्हाट डू यू डू व्हेन यू रीच योर फ्रेंड्स हाउस टू लेट और हर नो दैट यू आर एट द डोर. अगर हम किसी के घर भी जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको आवाज़ देंगे. सपोज वो नहीं सुन रहा तो हम क्या करेंगे, डोर को नॉक करेंगे. नहीं सुना तो हम क्या करेंगे, टिंग टोंग, डोर बेल को रिंग करेंगे. सो यू रिंग द डोर बेल. सो डू यू नो व्हाट मेक्स द डोर बेल रिंग, कैसे रिंग करती है. An electric bell has electromagnet that pulls a strip of iron which makes the hammer hit the gong to the ring the bell. Right, अब हम इसमें क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिवेट हो जाते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करते हैं, एक गोंग होता है, गोंग यानी कि एक घंटी होती है, ऐसे गोल गोल सा होता है, जिसके ऊपर टक से हैमर क्या करता है, टकराता है और आवाज बनती है. राइट, सो अब हम देखेंगे फंक्शनिंग. सो व्हेन यू पुश द स्विच ऑफ द बल्ब बेल एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, जब हम स्विच को प्रेस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, और क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं वो एक्टिवेट होंगे. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या करेंगे, ये सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप है ये वाली, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. राइट, सो द इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट्स द सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप, द हैमर अटैच्ड टू द स्ट्रिप देन हिट्स द गोंग. सो अब क्या होगा, जब ये स्ट्रिप अटैच हो जाएगी तो ये क्या होगा, ये स्ट्रिप अटैच हो गई इससे,
और इसके ऊपर एंड पर क्या बना हुआ है, हैमर बना हुआ है। तो हैमर किससे टकराएगा, हैमर टकराएगा गॉन्ग से, राइट। सो दिस हिट्स द गॉन्ग मेकिंग इट रिंग, और हमें आवाज सुनाई देगी। When the soft iron strips get attracted to the electromagnet, it no longer touches the screw. Screw यानी कि इसको हम इंटरप्टर भी बोलते हैं, इंटरप्टर, स्क्रू और इंटरप्टर, यानी कि वो अब स्क्रू से दूर हो जाएगी। स्क्रू से दूर होगी तो क्या होगा, इस स्ट्रिप, इस हैमर जो है वो गॉन्ग से टकराएगा और आवाज प्रोड्यूस होगी। अब क्या होगा, जब सर्किट ब्रोकन हो जाएगा, मीन्स जब हम हटा लेंगे, यानी स्विच से अपनी फिंगर हटा लेंगे, तो क्या होगा, ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट वाली प्रॉपर्टी क्या होगी, खत्म हो जाएगी। और क्या होगा, वापस से जो सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप है अपनी पुरानी पोजीशन पर आ जाएगी, यानी कि डिस्टेंस बन जाएगा और बेल रिंग नहीं होगी। सेकेंड स्टेप में यही दिखाया हुआ है। The soft iron strip returns to its initial position touching the screw. This result in the circuit being complete and current flows again. तो हम बार बार जब हम प्रेस करते हैं बटन को तो क्या होता है, बटन प्रेस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आने की वजह से ये जो सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप है ये अट्रैक्ट होगी मैग्नेट की तरफ, सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप अट्रैक्ट होगी। अट्रैक्ट होने की वजह से क्या होगा, ये हैमर जो है वो हिट करेगा गॉन्ग को और क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। तो ये पहले जो बेल्स आती थी, जो टिंग टोंग वाली साउंड देती थी, वो इसी मैकेनिज्म पे वर्क करती थी। स्टेप 1 2 3 रिपीट इन क्विक सक्सेशन as long as the switch it on. This is how we hear a continuous ring of the bell, right? तो ये प्रोसेस होता है बेल रिंग करने का। तो ये किस पर वर्क करती है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो वी हैव लर्न्ड टू इफेक्ट, कौन कौन से, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट चिल्ड्रन? So time to memorize what we have learned in this chapter. I hope we are clear on this part. So let's memorize what we have learned in this chapter. The terms such as electric circuit. So what is electric circuit? The unbroken path which an electric current flows. This is known as electric circuit. Next is circuit diagrams. So a drawing of electric circuit with standard symbols is known as circuit diagram. Electric fuse, a safety device which prevents excessive current from flowing in the circuit. And what happens? अगर electric current ज़्यादा flow करता है, so the wire melts and it broke down and electricity current stops flowing. Next is electromagnet. A piece of soft iron with an insulated wire around it that acts as a magnet when current flows in the wire. Now recall, quickly go through the points. 3 conditions are required to make electric current flow in a circuit. A source through which electricity is passing. Next, an unbroken path for electric current to flow and कंडक्टिंग वायर। सो 3 चीजें जरूरी होती हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी, कंडक्टर्स, कंडक्टिंग वायर्स, और सर्किट हैज टू बी क्लोज्ड, इट शुड नॉट बी ओपन। नेक्स्ट इज, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, scientists have developed standard symbols for drawing an electric circuit, such as drawing an electric circuit is known as circuit diagram. So हम इनको क्या बोलते हैं, symbols से जो symbols define है, standard symbols define है. If we are making a drawing of electric circuit with the help of these standard symbols, so we call it a circuit diagrams. Because जब हम 9th, 10th, 11th, 12th में जाएंगे फिजिक्स में, तो आपको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये ड्रॉ करने होंगे. तो अगर एवरी टाइम यू आर यूजिंग बल्ब, द स्विच एंड द सेल्स, so this would be very hectic and tedious job. Next is, when an electric current passes through an electric conductor or a wire, the conductor wire gets heated up. This is called the heating effect of
current, right? So heating effect का एक बहुत simple सा example I am giving you, the bulb, right? So bulb का initial motive क्या होता है? Bulb is for giving us light, right? So हमें क्या होता है? Light मिलती है. बट क्या होता है कि हम पुराने वाले बल्ब्स में देखें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एलईडी एंड CFLs एज ऑफ नाउ, तो उसमें क्या होता था कि आपको जब हम बल्ब टच करते थे तो हीट आती थी, हीट भी मिलती थी, राइट? तो क्या होता है, हमारी एनर्जी वेस्ट होती थी. एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एज आई टोल्ड यू. एनर्जी क्या हो रहा है, कुछ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में जा रही है, कुछ एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है, राइट? बट हमारे लिए उस हीट का कोई यूज नहीं है. सो दैट इज व्हाई द साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड दिस CFL एंड LED टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो अब उसमें क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी, तभी हम इनको बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी सेवर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी सेव करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमें सिर्फ लाइट देती है. CFLs और LED हमें सिर्फ लाइट दे रहे हैं और हीट में कन्वर्ट नहीं हो रही है. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक आयरन. रूम हीटर्स, इलेक्ट्रिक ovens, वाटर हीटर्स etc. use the heating effect of the electricity. Electricity fuse is a safety device. It prevents a large amount of current from flowing into any appliance or device. Next point, an electric fuse consists of a thin wire made of a material that melts easily when heated. Means हम वो wires use करते हैं जिनके melting point कम होते हैं. The electromagnet consists of a piece of soft iron which is known as core with an insulated wire around it. The soft iron piece acts as a magnet when a current passes through the wire. Next is electromagnet get used in cranes, electric motors, telephone, loudspeakers, electric bells, etc. An electric bell consists of a battery, an electric switch, electromagnet, adjusting screw, a soft iron strip, and hammer and a gong. So these are the different parts of a doorbell. So children, it's time to do the exercises what we have learned in this chapter. Darken the correct option in OMR sheet. First question, in a circuit diagram, the various components of the circuit are represented by, and the correct option is standard symbol. So I am darkening the one circle for you. Rest all you need to do. Answer is D. Similarly, you need to darken the circle for rest of the options. Next question is, the heating effect of an electric current is used in an electric bulb, electric toaster, or room heater, or all of these. So correct is all of these. An electric fuse is an electric circuit, an element in a bulb. It is a safety device. Next is, when an electric current flows through a wire, it behaves like a magnet. Next is, a hammer, a gong, and a soft iron strip are all part of an electric bell. Children, next question, fill in the blanks. Under this, first fill up is 2 or more cells joined together to form a battery. Absolutely correct. Next is, the electric fuse operates on the principle of heating effect of current. Next is, for electric current to flow, the wire should not have any gap. Next is, a fuse is said to be blow when the circuit is overloaded. And the fifth one, in the electric bell, it is a hammer that strikes the gong. So let's proceed for next question, which is true and false. We need to write down T for the true statements and F for the false one. First is, a wire carrying current shows magnetic properties. So this is correct. Next one, the strength of an electromagnet does not depend on the number of turns of the wire around the core, which is false. It depends, right? Next one, an electromagnet stop behaving like a magnet when the electric current is switched off. Again, true. Electromagnets are used in loudspeakers, electric motors, and electric fans.
Correct. Next is, in an electric bulb, the soft iron strip gets attracted to the interrupter when an electric current flows through the electromagnet. Again, true. Children, next is very short answer type questions. First is, what is the name given to the unbroken path through which an electric current flows? So it is a circuit. Question number 2, what is the another name of a switch, which is button? Question number 3, does the wire get heated or cooled when an electric current flows through it? So wires gets heated. Next is, name the factors on which strength of an electromagnet depends. So it depends number of times the wire is turned, and the second one, amount of current flowing through it. Next question, name 4 electrical devices which make use of heating effect of a current. So it is using in electric irons, electric ovens, hair dryers, electric heaters, toasters, etc. Next question is short answer type question. Under this category, first question, list the 3 conditions that have to be fulfilled for electric current to flow. So 3 conditions that have to be fulfilled for electric current to flow are: first, source of electricity such as cell and a battery. Next, complete circuit. Circuit has to be completed. It should not be broken or open. Next is conductive material. The wire should be made up with the conductors only. Right, children? Next is, what is the heating effect of electric current? So children, next question is, what is the heating effect of electric current? Heating effect of electric current: when electric current passes through an electric conductor or a wire, it gets heated up. This is called the heating effect of electric current. Question number 3, what is solenoid? It is a device that can be used as an electromagnet. It is a mode of a long wire that has been wound many times into a tightly packed coil. It has a shape of a long cylinder. Next is, name any 3 parts of the electric bulb. Bell. It is a gong, hammer, or electromagnet. Next question, give reasons of the following. First is, an electric current does not flow in a circuit when the switch in a circuit is open. So there are 3 reasons. The circuit is incomplete, and because of this, electricity is not flown in the circuit. The path of electricity is blocked, or electricity cannot flow in open circuit. Next question, the wire in an electric fuse is made of material that melts easily. It is because it breaks the circuit and prevent damage from the excessive current flow. Question number 3, an electric bulb feels hot to touch after it has been on for some time. So why it happens so? It is because it converts electricity into both light and heat, and because of this, you feel hotness of the bulb. Next is, a magnetic needle gets deflected when it's brought close to a current carrying conductor. It is because the electric current creates a magnetic field which influences the needle's direction. Last one, the soft iron strip of an electric bell gets attracted to the electromagnet when electric bell is switched on. So answer is, the electromagnet produces an electric field that pulls the strip towards it. Next is long answer type question. This is your homework. I would appreciate if you'll do it on your own, because we have already covered these topics while explanation of the chapter. So children, that's all for this chapter. Hope you have enjoyed the session. We will meet in the next class of science. Till then, stay connected. Bye and take care.